Hello, grade 4. Today we are going to study computer science, and I need to tell you that your checkpoints are about to come soon, so you have to complete your exercise from chapter 1 and 2. I've already told you about the first chapter exercise, and then you have to cover the second one too. And these exercises very easy. There's no typical questions. All you have to do is go through the first chapter and second, understand the requirement, the things which are used, like the which PCs are nowadays used, and what are the input and output devices, and how you are using the PCs. So this is all general type of the questions they have given. All you have to do is to go through your book, and you can understand it easily. So I have share a screen with you, the PowerPoint screen, and now this is very important for you. You have to complete the true and false, choose the correct answers, and the descriptive questions, which are just descriptive questions, not the one which are included in the application based, just the descriptive questions from the chapter 1, uses of the computer. It's very easy. This is not a rocket science, it's just a piece of a cake. And if there is any other inquiry or any queries, you can ask me anytime. And then again, there is a second chapter of input and output devices, where you have to complete the objective type of question, which are MCQs based, and they are very easy. Just you need to know the topic. If they are talking about any output device, you need to see if that output is mentioned in the chapter 2, and then you will get the answer from there. And the descriptive question is the same scenario. You have to go and just see what is the requirement of the question, and you can find the answers easily in your textbook. And if there is any other query, you can ask me anytime. From the second chapter, you have to complete the objective plus the descriptive type of question. Leave the application based question. They are typical, and if we will cover, I will tell you in the lab. So now I need to see, we have covered two chapters which are very easy, not so difficult. And because after checkpoint we will cover the third chapter, but I still need to tell you about the third chapter, what it is all about. I'm just showing you two videos related to the Windows, which is the third chapter. You will get a very good understanding about the Windows X, Windows 7. Okay, so till then we have you complete this full exercise from the type 2 chapters, and I will tell you more about the third chapter in this video. And when the checkpoint will be over, then we will cover the third chapter more in detail. First, I am just giving you much more about the introduction of the Windows 7. So you have to see the video, and if there's any question, you can ask me. Okay, so just see this. Mm.
So yes, you have seen this first video, the second video too. In first video, this takes you to the version which we are nowadays using, 221, but there's this officially Windows 7 version, which is very old version, and you can see about all this in this second video. And as you have seen that the things which the in the first video it was talking about the background change, about the sort about searching anything, you can change your images like you do in your mobile phone. You can put your gadgets in front of your big screen, and there are many other options, and you can change your lighting mode according to the day and light. You can change its lighting mode. There are many things you can do. There are options about the time zone change and editing for it. Now just see this video. कहने का वक्त नहीं आया क्योंकि अभी तो ये वीडियो शुरू हुई है। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसका नाम है विंडोज़ 7। जी हाँ, ऑफिशियली इसकी जो भी सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दी है। मतलब अब आपको विंडोज़ 7 के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी और ऑफिशियली इसको बंद कर दिया है। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये बहुत पहले से हम सुनते हुए आ रहे थे कि विंडोज़ 7 बंद हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि विंडोज़ 7 कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा और कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं उसके ऊपर, और अब इसके बंद हो जाने के बाद आम लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे बंद होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि विंडोज़ 7 किस वक्त में आई थी। विंडोज़ 7 आई थी 2009 में। ये वो वक्त था जब विंडोज़ XP लागू हो चुकी थी, ज़्यादा लोग चलाते नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, विंडोज़ XP अभी तक का सबसे ज़्यादा चलाए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ में। मतलब लेजेंड है। विंडोज़ XP ने धमाल कर दिया था। ये उस वक्त में आया था जब कंप्यूटर्स हर किसी घर में नहीं हुआ करते थे और जिनके हुआ करते थे वो विंडोज़ XP चलाया करते थे। हमने भी जब सही तौर पर विंडोज़ चलाने की शुरुआत की थी वो विंडोज़ XP से ही की थी। बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इतना नॉट सो कमाल ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसका नाम था विंडोज़ विस्टा। अब विंडोज़ विस्टा लुक वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन कई सारे ड्राइवर्स इसमें ड्राइवर इशू होता था, हार्डवेयर फेलियर वगैरह, हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये लोगों को बहुत शिकायत थी कि भैया जो विंडोज़ XP था उसके मुकाबले विंडोज़ विस्टा तो कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है, ये सारी प्रॉब्लम्स को देखी। तब एक वरदान के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम 2009 में आया जिसका नाम था विंडोज़ 7। अब विंडोज़ 7 ग्लास लुक में आता था, जिसमें आप थीम चेंज कर सकते थे, थीम वगैरह चेंज कर सकते थे, कलर स्कीम वगैरह चेंज कर सकते थे, आप क्लॉक लगा सकते थे डेस्कटॉप पर, मुझे याद है, और रिसोर्स मीटर लगा सकते थे कि कितना CPU और रैम यूज़ हो रहा है, स्टिकी नोट्स लगा सकते थे आप डेस्कटॉप पर। पहली बार जब मैंने विंडोज़ 7 में देखा तो मुझे लगा वाह क्या कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम। और वाकई में ये PC ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम था। PC ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये इकलौता ऐसा कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ही कमाल है, ये इकलौता ही है जो बहुत ही कमाल है। और ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही आया था क्योंकि आपको टैबलेट वगैरह में और छोटे मोबाइलों में और इन सब में विंडोज़ 7 ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जबकि विंडोज़ 10 की बात करें तो विंडोज़ जो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको टैबलेट्स में भी देखने को मिलेगा, जो लाइट वेट और जो लाइट प्रोसेसर वाले ARM प्रोसेसर वाले जो भी लैपटॉप होते हैं, सिर्फ वो कंप्यूटर होते हैं, ये सब में आपको विंडोज़ 10 देखने को मिलेगा। लेकिन विंडोज़ 7 कंप्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, कंप्यूटर के लिए ही बनाई गई थी और इसीलिए बड़ी कमाल की थी। लुक वाइज बहुत अच्छी थी और ये लाइट वेट की थी, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेती थी और गेमर्स के लिए तो पैराडाइज था। मतलब ऐसा गेमिंग के लिए तो सबसे बढ़िया माना जाता था विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसकी पूरी कहानी, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, विंडोज़ 8 आई जो मेट्रो लुक और वो अजीब सी स्टार्ट स्क्रीन आ गई, किसी को पसंद नहीं आया, ऐसा हो गया। उस चीज़ को फिक्स करते हुए फिर विंडोज़ 10 आई जिसमें कुछ थोड़ा ठीक किया गया। अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब खत्म होता है, जब हम बोलते हैं कि ऑफिशियली ओवर हो चुका है, इसके लिए कोई अपडेट नहीं आएंगे, इसका मतलब ये होता है कि अब आप रिस्क पर हैं कि इसमें वायरस आएंगे या कोई कमी अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निकलती है, क्योंकि किसी भी सिस्टम और वेबसाइट में कमियाँ निकलती हैं, फिर जो कंपनी होती है कमियों का समाधान अपडेट्स के थ्रू आपको देती है। क्योंकि अब विंडोज़ 7 के लिए अपडेट नहीं आएंगे, तो अगर आप विंडोज़ 7 में कोई कमी देखती है, कोई इशू आता है, उसका पैच माइक्रोसॉफ्ट नहीं देगा क्योंकि वो अपनी तरफ से सपोर्ट एंड कर चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कोई बाहर से पेन ड्राइव नहीं लगा रहे हैं एंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज विंडोज़ 7 फॉर इवन
आप विंडोज एक्सपी भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल मीडिया नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई फालतू डेटा नहीं डाल रहे हैं, बाहर का डेटा नहीं आ रहा है, इंटरनेट से आप कनेक्टेड नहीं हो, आप कितनी मर्जी इस्तेमाल कीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ें डाउनलोड करते हैं, लोगों के कन्वर्ट लगाते हैं, यहाँ पर उन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने पायरेटेड विंडोज चलाई हुई है, क्योंकि वो अपडेट करते नहीं, जो लोग अपडेट भैया अपडेट नहीं करते, क्योंकि कोई लोगों को पता होता है यार पायरेटेड विंडोज़ है, इसे क्या अपडेट करना है, जैसे चल रही है चलने दो। ऐसे केस में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन उनमें कोई कमी आ गई तो वो अटैच हो जाएगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन और कहीं से एक्सटर्नल मीडिया अपडेटेड रहना है, वायरस से फ्री रहना है, अपने अकाउंट को हैक होने से बचाना है और बस सिक्योरिटी, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये फ्री में अपग्रेड करना अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट से, आप फ्री में विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से विंडोज 10 कर सकते हो। ये कहानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाकई में ये एक बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम और एक रिव्यू वीडियो है विंडोज 7 के लिए। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ऑफिस हैं जहाँ पर विंडोज 7 इस्तेमाल हो रही है, और वहाँ पर क्या होता है, जेन्युइन कॉपी होती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर में विंडोज चलाते हैं लोग ज़्यादातर पायरेटेड विंडोज होती है, और लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो लाइसेंस खरीदती हैं, ओरिजिनल विंडोज यूज़ करती हैं, तो जिनके यहाँ भी विंडोज 7 ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है, अब उनको नोटिस आ गए होंगे कि आप अपनी इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए विंडोज 7 सपोर्ट करना मुश्किल है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखना है, हैक सरकार लोगों को सब कुछ आज भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर विंडोज एक्सपी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे तरीके का फिक्स करता है। ये है फाइनल वीडियो, अब विंडोज 7 खत्म हो रही है। अगर आपका लैपटॉप, अभी आप लैपटॉप पर विंडोज 7 चलाते हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, ये वक्त आपकी है कि आप अगर सेफ रहना चाहते हैं और ये वक्त के साथ से आप बहुत सारी चीज़ें कैसे अपडेट करें। मैंने तो आपसे वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करें, विंडोज 7 के नाम करें। अगर आपने कभी विंडोज 7 चलाई है तो ये वक्त है उसको फाइनल अलविदा करने का, और जो उसने आपको नई चीज़ प्रोवाइड की है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले कंप्यूटर की जो पहली ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज 7, उसके नाम पर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है विंडोज 7 से। और अगर आपको इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आपको हिंदी भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, बहुत ही आसान भाषा में, ज़रूर चेक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। So kids, this is all for today. As you have seen this Window X which we used in 2009, and nowadays which we are using today is the updated version. The one which was used in previous days was very simple and not a complex, and there were things which the speaker was saying about the Windows X, Windows 7. So if there's any other query you can ask me anytime. This is all for today, and complete your fair works so there should be no difficulty in the exams, checkpoint exams.